We can start with the session, Gauri and Gurmeet. Over to you. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon to all the faculty members and to my fellow students. My name is Gurneet Singh. And my name is Gauri Kapoor. We welcome you all on behalf of National Service Scheme. We would like to extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Murugan Pillai sir. And sir, I also pay sincere regards from the side of Dr. Ravikant Swami sir, Director DME, and Professor Dr. Bhavesh Gupta sir, Head of Academics, DME Law School. Due to some reason, they are not able to join us. So I also pay sincere regards to you from their side, sir. Further, we would also like to welcome our faculty conveners, Dr. Smita Gupta ma'am and Ms. Shanu Jain ma'am, to our International Yoga Day event. I would like to begin today's session with a little introduction of our esteemed institute. Delhi Metropolitan Education is a premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by Bar Council of India. Our institute sets the standard for media, law, and management education. Our campus is committed to improving the health and quality of life of all our students and beyond. The National Service Scheme, popularly known as NSS, is a central sector scheme of Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. It provides opportunity to the student youth of graduate and postgraduate at colleges and university level of India to take part in various government-led community service activities and programs. The sole aim of the NSS is to provide hands-on experience to young students in delivering community service. Yoga is a symbol of universal aspiration for health and well-being. It is health assurance in zero budget. Rightly said by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Yoga is an ancient physical, mental and spiritual practice that originated in India. The word yoga was derived from Sanskrit and means to join or to unite, symbolizing the union of body and consciousness. Today, it is practiced in various forms around the world and continues to grow in popularity. The message of yoga in promoting both the physical and mental well-being of humanity has never been more relevant. A growing trend of people around the world embracing yoga to stay healthy and rejuvenated and to fight social isolation and depression has been witnessed during the pandemic. Yoga is also playing a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation. It is particularly helpful in allaying their fears and anxiety. The International Day of Yoga aims to raise awareness worldwide of the many benefits of practicing yoga. We would like to welcome Dr. Murugan Pillai sir, our guest of honor on behalf of the DME NSS team. Sir specializes in Kalari Marma Chikitsa, Siddha medicine and Ayurveda. He is one of the few existing people in modern times who know the ancient art of Kalari Marma Chikitsa or knowledge of vital pressure points in the human body used in ancient warfare and medicinal system for treating several untreatable diseases. Sir has been practicing since the age of 13. He learned Ayurveda from different Vaidyan from Kerala. Dr. Pillai sir holds a degree from Siddha Maruthuva Gurukulam in Madurai, Tamil Nadu. He is a registered practitioner of Indian Board of Orthopedic Medicine. Moreover, a lifetime member of Indian Association of Sports. Now I invite our guest of honor to enlighten us on the importance of yoga in today's time to the young generation and address our questions that we receive from the audience on the occasion of International Yoga Day. I very respectfully hand over the dice to you, sir. Welcome, sir. All of you namaskar. Myself Murugan. First of all, thanks to DME NSSL, then second director of DME, Professor Ravikant Swami sir, then Professor Dr. Bhavesh Gupta sir, and all other like you are all of you namaskar. Today's our section is about yoga and Shakti of yoga and Ayurveda.
वो सब्जेक्ट सुन के पहले लग रहा था ये लेने के लिए हमारे पास ताकत है कि नहीं. We are given the 9 minutes Shakti of Yoga and Ayurveda. Now the lifestyle like that, we can't understand the both subjects. Whatever we are seeing today, the Ayurveda and the name of the Ayurveda as well as the Yoga, this is not a real thing. Why? Modern education also is not a real way. हमारा गुरुकुल system था कैसा रहा? Whenever Guru wake up on the 3 o'clock, the student will be wake up on the 2 o'clock. Can you imagine these things? Now we are wake up on the 11 or 10 o'clock. So this different thing is there. So the subject is Ayurveda and as well as the Yoga. The both are the depend upon the Yama Niyamas, whichever we didn't follow nowadays. Whenever you wake up, whenever you sleep, nothing is have any order is there. So following the both things, the order is required. Everything is has some proper menus. From morning to ending, whatever we have to do, have the systematical way. So in Ayurveda, it's saying the same way. Yoga also the same. That is called Yama Niyamas. कुछ नियम को तो बनाना पड़ता है ठीक रहने के लिए हर जगह. If the college time is 11 o'clock, if you are going to the 12 o'clock, this is not good. So every day the timing is very required. बहुत systematically. मैं कभी उठूंगा कभी सोऊंगा वो सिस्टम नहीं होता. इस सिस्टम से जाना बहुत जरूरी है. पहले हम योगा के ऊपर थोड़ा बात करें, then we will go for the Ayurveda. Before starting that, we just go for the short clip. वो सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, what are things included, we will discuss on that. Yoga and Ayurveda originated in India more than 3,000 years ago. Both are ancient Indian therapies. One is a natural healing system, other is with the contribution of the great science. The aim of the both is to harmonize the body, mind and soul. Combination yoga, basically combination of the breathing techniques, exercise, postures or meditation. Helps in breath control, flexibility, mental being. Yoga does not have any medications. That is very clear. So nowadays people are missing with the naturopathy and yoga. So on the name of the yoga, they are giving the medicines also. It's a very clear thing is when you do the yoga, there is no medications there. Ayurveda involves a healing system. Maybe you are hearing the first time I am written this because this last 3 days back I got some information that I included. 64 method in Ayurveda, 32 internal medication, 32 external applications. तो 32 प्रकार के इंडियन मेडिसिन हम दे सकते हैं इलाज करने के लिए. इसके अंदर चूर्ण, कषाय, डिफरेंट और थिंग. सेम वे ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है, लेबन, बाम, दिस एवरीथिंग इज फॉर मेडिकेशन पर्पस. दैट्स आल्सो 32 टाइप्स. These all things are not available in the market. Traditional people still they are following the both this system. It also involves modifying the one's diet, eliminating food that does not suit for the most active elements in the body. That is especially in the mind. Combination of science, religion, philosophy. Yoga and Ayurveda are based on the philosophy of creation. Not that at all. Both there is a cosmic consciousness is source of all existence. So this is both subjects we are going to discuss. Ayurveda, age-old traditional way, whichever is depend upon our lifestyle, mainly we called is a Ridhucharya and Dinacharya. Ridhucharya means according to the climate. आज बारिश हो गई तो हम क्या करते हैं, हम ठंडा खाना खाना नहीं चाहिए. आज बारिश हो गई तो हम क्या करते हैं, पहले बुजुर्ग लोग कहते हैं इनको ठंडा खाना आज जो भी चावल वगैरह बनाया बंद करके रखे. Then they come to the light food. So that is the people know does not know the science, but these things they very well know. According to nature, we have to change our food. So this for a small example I said that this is a Ridhucharya.
Dinacharya means when we wake up to the goes of blood for the sleep till we have some proper system. ब्रह्म मुहूर्त में हमारे को सुबह उठने, तो ब्रह्म मुहूर्त वाला कभी ब्रह्म मुहूर्त वाला कोई सुना? शब्द तो सुना होगा पर प्रैक्टिकल में देखा नहीं होगा. बिफोर सनराइज whatever physical activities, otherwise gaining of the Brahma means as per Sanskrit meaning is only knowledge, not nothing else. Brahma means knowledge. Whenever gaining any knowledge, you wake up early. So whatever activities you are going to do, the physically or mentally or any other activities, you have to wake up very early. That is called the Brahma Muhurta. After that, clean is the body. शरीर को क्लीन करना है. वो पूरा दिन में जो शरीर में मल था, बाहर से मल होगा, घर के अंदर काम करके मल होगा, जो हमने जो काम डाइट लिया उसी से जो मल बनता है, एवरीथिंग इज क्लीन आउट. तो वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाता. उसके बाद फिर बाकी शुद्धि, ये अंदर की शुद्धि हो गई. इंटरनल शुद्धि तो होगी, और बाकी शुद्धि के लिए क्या बात हो, प्रॉपर स्नान करना भी. स्नान करने बाद क्या होता है, पर हम उसको फिर मॉडिफिकेशन के लिए आ जाते हैं. शरीर को सलाने के लिए पाउडर लगा दे, वो कर दे, इस तरीके से कुछ का. उसके बाद हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. तो ये ब्रेकफास्ट तो दिनचर्या में क्यों इसमें ब्रेकफास्ट का जो स्थान आता है, वो उसका डाइजेशन करने के लिए टाइम चाहिए. द बेस्ट टाइम टू टेक द ब्रेकफास्ट इज 7 to 8 o'clock इन द मॉर्निंग. तो जो अंदर जाने के बाद इसको डाइजेशन काम कौन करता है? पंचभूत, 5 एलिमेंट्स काम करते हैं. बिना अग्नि से हम खाने का पचन नहीं कर सकता. विदाउट अग्नि वी कैन डाइजेस्ट इट. तो मैं 11 बजे खाना खाऊंगा तो अग्नि का जो तेजस है वो खत्म हो जाता है, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता. तो अर्ली मॉर्निंग में 7 और 8 बजे खाना खाते हैं, विद इन द 10 और 11 बजे तक डाइजेशन हो जाता है ड्यू टू द पावर ऑफ द अग्नि. If you are taking the food on the 12 o'clock in the breakfast, then you see what happen will be there. Then हमारा टाइम आता है, हम कुछ काम करने में लग जाते हैं. That's also power of the Agni. जो all activities. Whenever body has the 2 nadis calling, one is the Surya Nadi and Chandra Nadi. Surya Nadi the functioning on the right, Chandra Nadi function on the left. So all physical activities when you have to do, that is the Surya Nadi. It is help for the Surya Nadi. तो हम खाना खा के फिर अपना काम में लग जाते हैं. 1 घंटे 12 बजे 1 बजे आ जाते हैं. 2 फिर लंच टाइम है हमारा. और लंच टाइम से तो 12 बजे से और 2 बजे के बीच का जो सूर्य का पावर है और थोड़ा तेज हो जाता है. That is why we are keeping the lunch in the between the 12 to 2 o'clock. तो इसको हम सीधा लाके 4 बजे खाना खाएंगे तो ये और भी बिगड़ जाता है. Then our time is evening time. तो ये थोड़ा सनराइज से कम होते होता आता है. हमारे बॉडी का अग्नि भी कम होते होता आता है. हमारे फिजिकल एक्टिविटी भी कम होते जाता है. थोड़ा हमारे को शरीर में टायर्डनेस फील होना शुरू हो जाता है. तो इवनिंग प्रोसेसिंग में आते आते हम सीधा 6 बजे 7 बजे आ जाते हैं. फिर हमारा काम पूरा बंद करके हम अपना और घर का काम में आ जाते हैं. After that, again the body cleaning is required. Whenever goes back, go out of the home, come back, और काफी बैक्टीरिया हम लेके आते, काफी डस्ट को लेके आते, दोबारा बॉडी की क्लीनिंग करते. क्लीन करने के बाद फिर हम हमारा डिनर में चल जाते. तो डिनर हमेशा इस टाइम का हम डिनर के क्या बात करें, हल्का होना चाहिए. बिकॉज सनराइज तो है नहीं, अग्नि का काम कभी नहीं होगा. अग्नि का काम शाम को होते होते सन का काम शुरू हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, हल्का सा खाना लेंगे तो आपको अच्छा स्लीप मिलेगा. ध्यान देंगे शरीर में बॉडी से और टॉक्सिन कम निकलेंगे. इस तरीके से आपके लिए हम हल्का सा खाना लें. इसके बाद हमारा स्लीपिंग. ये एक ऋतुचर्या का स्टाइल. हम इसको छोड़ के हम अपना आज के दिन में स्टाइल में जाएं. हम उठते 11 बजे, ब्रेकफास्ट हमारा 12 बजे, हमारा लंच 4 बजे, हमारा डिनर 10 बजे, सोना 1 बजे. This all thing is unnatural. It's not a natural way. नेचुरल लेके सिर्फ शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं. अननेचुरल लेके कभी स्वस्थ रखने की चांस ही नहीं. मैं कल से सन को बोले तुम ये काम करना, मैं 12 बजे उठता हूँ तो 12 बजे आ जाओ, ये कभी नहीं हो सकता. नेचुरल ऑलवेज दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, नो डाउट एट ऑल. हमारे लिए कभी वेट नहीं करेगा. वी हैव टू मेक इट टू अदरवाइज चेंज इट अवर स्टाइल. देन ओनली वी कैन कीप आवर बॉडी फिट. ये चीज को हम कब तक लाके नहीं आएगा इस सिस्टम से, कभी भी हमारे लिए नेचुरल आएगा नहीं. रोग और निरोग. रोग जो पेशेंट तो बीमार हो जाता. निरोगी क्या है, रोग से मुक्ति.
हम डॉक्टर के पास जाते जाके कभी हम कहते कोई बीमारी के लिए गया, हम कभी डॉक्टर से दवाई लिख के लेके आ गए, दवाई खा लिया बीमारी चला गया। कभी हम पूछते बिना बीमारी से रहने के लिए कोई उपाय बताओ, कभी हमने पूछा? कभी each and everyone ask themselves whenever met the doctor, even anybody ask this question, डॉक्टर सर मैं बिना बीमारी से कैसे जी सकता, मेरे को वो लिख के दो, मेरे को मेडिसिन मत लिखो, कभी हमने बोला? So what our mentality always like this, when we have the happen, we go to the doctor, take the medicine. So after the medication be clear, everything is clear. But systematically what? We always think about this, without the disease, how can I live? Without the medication, how can I live? प्रकृति में ह्यूमन बींग्स छोड़ के बाकी जानवर कितने मेडिसिन लेते हैं बताओ? अभी इसके मेडिकेशन जरूर पड़ता है? नेचुरली जीते हैं वो, कुछ नहीं देते। कि नेचुरल से कितने हम दूर जाते हैं उतने बीमार भी पड़ते हैं। आज का हमारा लिविंग सिस्टम इतना बिगाड़ हो चुका है तो बीमारी के बढ़ाता जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड सिद्धा, द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल डिजीज ऑलरेडी रिटन बाय द ऋषिज। According to Siddha, 4,440 disease human have from birth to end of the life. उनको जनन से मरने तक 4,440 डिसीज है। कैन इमेजिन? आदमी के बर्तन में इन्होंने पहले से ऋषि लोगों ने लिख के रख दिया। अभी हम रिसेंटली हमारे कोविड फीवर के ऊपर हम बात कर रहा था। फीवर कितने प्रकार के हमारे शरीर में? हमने एक ही फीवर के ऊपर पीछे पड़ी है। 13 टाइप ऑफ द फीवर इज इन द ह्यूमन बॉडी है। 13 प्रकार के फीवर आ सकते हैं, उसमें एक फीवर है ये भी जो हम कोविड का चल रहा है, अलग नहीं, अलग कोई फीवर नहीं, कुछ वायरल इन्फेक्शन है पहले से लिखा गया। फिर दवाई के ऊपर हमेशा हमारा आयुर्वेद और योगा का ये कॉन्सेप्ट रहेगा, हमेशा निरोग में रहने के लिए आपको रोग तक पहुंचना नहीं है कभी भी, हमेशा निरोग में रहना बिना बीमारी से। तो बिना बीमारी कहां से आएगा? सिस्टमेटिकली आए। बिना सिस्टम नो वे। हम सिस्टम अपने आप को लागू नहीं करेगा कभी कुछ नहीं कर सकते। बाद में करना, इस चीज को बाद में करेंगे ये कभी नहीं होता, वो शरीर के लिए कभी नहीं है। हमेशा जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है तुरंत करना। सुबह स्नान करूंगा तो मैं शाम को भी, तो ये आज क्या दिक्कत है शाम को कर लेंगे क्या दिक्कत? तो आपको ये समझना पड़ेगा विदाउट द टाइम पीरियड और बैक्टीरिया शरीर में बढ़ जाते हैं, उसको साफ नहीं हो पाते। तो टाइम पे स्नान करना, टाइम पे स्नान लेना। तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं? आहार टाइम पे होना चाहिए, विश्राम टाइम पे होना चाहिए, व्यायाम टाइम पे होना चाहिए, निद्रा टाइम पे होना चाहिए। निद्रा का टाइम क्या है? सन सेट खत्म होते हैं फिर हमारे निद्रा का काम शुरू हो जाता है, बॉडी टायर्ड होके होते हैं तो निद्रा में जाना। मैं कहूँगा नहीं, मैं निद्रा के टाइम में पढ़ूंगा, पढ़ने टाइम में निद्रा होगा, क्या होगा? पूरा रात को नींद छोड़ के पढ़ूंगा, सुबह आके मैं सो जाऊंगा आराम से। ये सब विकृति, विकृति के ऊपर प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। विकृति के ऊपर प्रकृति कुछ नहीं कर सकता। वो चुपचाप बढ़ जाएगा, अपना को बीमार होगा, दवाई खाना पड़ेगा। शरीर में जो मल बाहर निकलते हैं वेगता कहते हैं इसको, स्पीड है, एयर का स्पीड है। शरीर का यूरिन निकालना, बाउल क्लीन करना, चीटी आना, सब एयर का काम है। शरीर में 10 प्रकार का प्राण है। हम एक ही प्राण के बारे में सुने है ना, कहते हैं यार प्राण चला गया भैया, खाना नहीं खाऊंगा तो प्राण चल जाएगा। हमारे शरीर में 10 प्रकार का प्राण है, उसमें एक के प्राण का नाम है प्राण है, अदरवाइज अलग अलग नाम, अवान व्यान वे इस तरीके से चलते रहते, कर्म कुर्म सब अलग अलग नाम पे पुकार जाते हैं। ये अलग अलग वायु का अलग अलग का काम, वो अलग अलग टाइम पे काम करते हैं, वो अपना टाइम पे काम नहीं करेगा। मैं काफी देर यूरिनरी नहीं करूंगा, लेके चलूंगा तो वो वायु काम करना बंद हो जाता है, वो कुछ बीमारी के लिए पहुंच जाता है। हमारे काम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर हम कहीं तो लंबा देर बैठ जाते तो अंदर का फंक्शन की लिमिटेशन है, उसके बाद वो क्या करे, सेंसेशन खत्म हो जाता है, वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा, और रेस्पॉन्स नहीं करेगा चलते चलते बीमार में पहुंच गए। अब मेरा काम है, कोई शॉप में काम करता है, मेरा खड़ा होना पड़ता है, तो 4 घंटा 5 घंटा खड़ा रहेंगे तो क्या होगा, एक जगह टाइम पे यूरिन कलेक्ट होता है उसको पास नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, वो ब्लैडर को बढ़ा देगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है, पूरे प्रोस्टेट की बीमारी में पहुंच जाते हैं, नहीं तो यूरिन इन्फेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो ये सब वेग देख हमारे कभी रुका नहीं सकता। छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा अभी इसी वक्त में, वो संदर्भ के हिसाब से
पहले जो 20-30 साल पहले घर से निकलता था जो बच्चे को, जो मम्मी कहते आप जल्दी आना, आज के दिन में आप लोग निकलते क्या बोलते हैं? ध्यान से आना, ध्यान से जाना। क्यों ध्यान क्यों का आपको? आप लोग ध्यान नहीं होता? वाई दे आर यूजिंग द वर्ड ध्यान? कहाँ से काम बोल? 20-30 साल का फर्क बता। पहले कहता है जल्दी आना, तो दे आर कॉन्फिडेंट दे विल कम बैक विद द प्रॉपर वे। अभी कह रहे ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ये क्यों फर्क आ गया? Why with the between the 25 with such a difference is there? हम किसी में ध्यान नहीं दे रहे, उनको पता है। The people are careless people, ये कभी किसी में ध्यान नहीं देता, तो इसलिए उनको कहना पड़ता है ध्यान से जाके ध्यान से आना। ध्यान से जाना सबसे पहले ये कहेगा, अरे कॉलेज जा रहा, ध्यान से जाना भाई। हमारे टाइम में कहते हैं जल्दी आना। आप लोग अंदर दोनों इंक्लूड हो गया, ध्यान से आना भी है, जल्दी आना भी है, क्योंकि ध्यान से भी नहीं आएगा, जल्दी भी नहीं आएगा। ये गाड़ी चला गया तो चला के वापस नहीं आएगा, तब तक भूख नहीं लगेगा, घर की चिंता नहीं होगा। तो कहां से कहां हमारा कन्वर्शन हो चुका है, तो हमारा ध्यान कहीं भी नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यही है, वो सबसे पहले सब कौन जानता है? हमारा मम्मी को पता, नहीं तो पापा को पता। तो दे ऑलवेज सेइंग दैट व्हेनेवर लिव इन द होम, ध्यान से जाके आओ भाई, ध्यान से जाना। ये शब्द तो आप हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से जाना। हम इतने बड़े होने के बाद इनको ध्यान से जाने के लिए क्यों बोलना पड़ा? ये शब्द कहाँ बोलना चाहिए? बच्चे को बोलना चाहिए, आप ध्यान से चलो, अरे सीढ़ी उतरो, ध्यान से उतरो। हम इतने बड़े होने के बाद भी मम्मी पापा हमारे को क्यों कहने के लिए जरूरत पड़ रही है? हमने कहीं भी ध्यान नहीं, उनको पता है ये 12 बजे उड़ने वाला है, ये 2 बजे सोने वाला है। कभी भी इनको किसी में भी ध्यान नहीं होता। तो इनको कोई काम दूंगा तो मेरे को नुकसान ही पड़ेगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम ये कहने के क्या मतलब है? शरीर के ऊपर ध्यान ज्यादा चाहिए। अब बिल्ली देखे, कुत्ते देखे, ये सब देखो, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, हमेशा अपने पाँव से मुंह को साफ करते रहेगा, हाथ को साफ करे, शरीर साफ करे। हम शरीर को कितना ध्यान देते अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। योगा में अलग अलग पार्ट का बात हुआ है, ध्यान है, आसन है, सब कुछ। ये सबसे पहले हमारे ये जानना जरूरी है, हमारे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है। सब चीज सबके लिए सही नहीं रहता, कुछ लोगों के लिए कुछ आसन ठीक रहता, कुछ के लिए खराब रहता। मेरे लिए क्या सूटेबल है, दैट डिपेंड अपॉन द देयर बॉडी नेचर, कॉल्ड इज आयुर्वेदा प्रकृति, वाद पित्त कफ प्रकृति। कुछ आसन करने वक्त प्रकृति बढ़ जाती है, सबके लिमिटेशन है। स्टिमुलेटरी जाना, इक्वल जाना, शरीर स्वस्थ, वो इक्वल से हट जाता तो फिर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। कुछ लोगों के शरीर में पित्त प्रकृति है। अब मैं कुछ लोग देखते हैं, उनके देख के मैं उनकी बीमारी अभी बता सकता हूँ। When you want to ask something, I am seeing the photographs of the screen, I can say what the disease they have right now. बोलने एक दो लोगों को बोल दूं तो आप लोगों को पता लग जाए। And just going to the Yashika Goyal, maybe she having the sinuses problem. You have the sinuses problem, Yashika Goyal? अब सुनाई दे रहे याशिका गोयल को? आपका साइनसेस का प्रॉब्लम है क्या? मे बी यस सर। जो आपको सिर दर्द होता है क्या? जी सर, रोज का है। या फिर डायग्नोस करने के डॉक्टर के पास जाना कोई जरूरी है? सर जरूरी तो है, बट जा ही नहीं पाते, इसका रूटीन ऐसा हो गया है। मैं आप देखो, आप कितना दूर बैठे, मैं कितना दूर बैठे, मैं आपको देख के बता रहा आपको ये दिक्कत है। डायग्नोस कुछ किया नहीं मैंने। इस तरीके से अनुज सारंगी है, इनके इंडियन शरीर में काफी दिक्कत है, बॉडी बड़ा हीट होता है, पित्त प्रकृति। अनुज सकलानी, उनको शरीर में पित्त का प्रकृति है, ये कुछ भी खाएगा तो कभी मोटा नहीं हो पाएगा। पूछ के देख लो। अनुज सारंगी सही बोल रहा हूँ? Yes sir. तो दिस इज वे टू द डायग्नोस। कोई जरूरत नहीं मैं यहाँ बैठा आपको कहीं बैठे तो पता लगता, आराम से पता लगता, बॉडी सही व्हाट द नेचुरल वे है। तो हम यहाँ का ये कहने चाहता था, जो हम सेलेक्ट करने के पहले हमारे लिए सूटेबल है क्या ये चीज, योगा हो जाए, मेडिकेशन हो जाए। योगा से हम क्या जो अलग अलग पोस्टर्स है वो सबके लिए सूटेबल नहीं होता, कुछ लोगों के लिए सूटेबल होता है। इसके लिए जो कहते हैं क्या, जो एक छोटा सा श्लोक है, योगेन चित्तस्य, योग है तो चित्त को क्लीन करना, चित्त वृत्ति निरोधः, इसको ये शब्द माना गया।
चित्त को क्लीन करने के लिए योगा करना चाहिए। मैं ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा हूँ, आप लोग को इस पर पूछ सकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाजा मलं शरीरस्य च वैदिकेन यो परागरत्वं प्रवरं मुनीना पतंजलि प्रांजलि रानदोस्मि। योगेन चित्तस्य, योग से चित्त को क्लीन करना है, चित्त वृत्ति निरोधक, और कोई काम नहीं कर सकता। आज दिन में हम ऐड देखते हैं ना, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। योगा में ऐसा कुछ कहीं भी पतंजलि सूत्र में कहीं भी नहीं लिखा योग बीमारी को ठीक कर सकता, कहीं नहीं लिखा गया। तो सेकंड शो में जाए, योगेन चित्तस्य पदेन वाजा, जो शरीर में जो मल के बारे में पतंजलि कह रहे, आप जो बात करते हो उसमें भी मल ले। इफ यू आर, आप कुछ गलत शब्द यूज करते हो वो भी आपके शरीर में मल पैदा हो जाता है। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन, शरीर में जो मल है वो वेद से जाके ठीक करना, योग से ठीक नहीं कर सकता। मलं शरीरस्य च वैदिकेन, योग से चित्त क्लीन हो जाएगा। शरीर में इस प्रकार का अलावा कोई मल आ जाए तो आपको वेद के पास ही जाना है। यो परागरत्वं प्रवरं मुनीना, इस तरीके से कई चीज को दुनिया के सबके के लिए पतंजलि ने बोला गया। ये कोई भी कास्ट क्रीड कुछ भी नहीं कर, ये योगा करते दूसरे करते ऐसे कभी नहीं लिखा। यो परागरत्वं प्रवरं मुनीना, ये हमारा कहता है ना भारतीय सनातन क्या है, दुनिया सबके लिए ठीक रहना, सब जगह हम ठीक रहे। हमारा हमेशा हम ये नहीं कहता पड़ोसी खराब हो जाए मैं ठीक रहूंगा, कभी नहीं। पड़ोसी ठीक होते मैं ठीक रहूंगा। सराउंडिंग ऑलवेज काम, देन outside myself also. Surrounding polluted, myself also. Very clear things. तो यो परागरत्वं प्रवरं मुनीना, ये जो बना गया साइंस दुनिया के सबके लिए, हर जीव जाल के लिए, किसी के नहीं छोड़ा ऋषि लोगों ने, सबके लिए बोला गया योगा करो, सबके लिए करना है, एक ही नहीं। हर जानवर के अलग पोस्टर है, आपने देखा बात किया होगा। डॉग अपने योगासन में बैठ जाता है, बिल्ली अपने योगासन में बैठ जाती है, चिपली अपने योगासन में बैठ जाता है। तो इसी में भी ये क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू लोग शिवा 64 लाख एनिमल्स है, आदमी में मिला के 64 लाख है। तो इन्होंने क्या किया, 64 योगासन तो बन नहीं सकता, 1 लाख जानवर के लिए एक पोस्टर बना दिया। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो पहले योगासन सिर्फ 64 योगासन था, अभी डेवलप करके 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 108 बन गए कई गुरु लोग, अभी करके करके उससे भी ज्यादा हो। नॉर्मल एक्सरसाइज एंड योगा डिफरेंस इज, नॉर्मल एक्सरसाइज वी कैन डू एनी स्पीड, कितने भी स्पीड से कर सकते हो, दैट इज एक्सरसाइज। व्हेन यू डू द वेरी स्लोली, दैट इज योगा। योग शब्द क्या है, मिलान है, मन और शरीर को मिलान है। आयुर्वेद में भी योग के शब्द है, कहाँ, तैल योग, चूर्ण योग, कषाय योग। कषाय एक चीज टॉनिक है, वो अलग अलग मेडिसिन से मिलाने के लिए इसे योग है। तैल योग डिफरेंट हर्बल से ऑयल बनाते। तो योग शब्द के सब कुछ मिला के, माइंड और शरीर को मिला के जाना है। आयुर्वेद में भी सेम शब्द यूज किया गया, तैल योग, कषाय योग, चूर्ण योग, डिफरेंट मेडिकेशन एक जगह पे लेके आते, तो फिर अलग फॉर्मेशन बन जाती है। अभी ट्रीटमेंट का जो आज के दिन में हम ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, जो योगा का भी हम इसको जोड़ के जाएं, अभी हर आदमी हर चीज करते हैं, वो ये नहीं देखते मेरे लिए योगा ठीक है नहीं, पोस्ट ठीक है, फिर कहते हैं वाइन के स्प्रेन हो गए से ठीक करो। हम कहते हैं आपको सोटल आप क्यों नहीं करना गया, वो गुरुजी ने करा दिया, हमने कर दिया। तो बॉडी के नेचुरली से हमारे को ये पहले क्लियर होना चाहिए हमारे शरीर के लिए क्या जरूरत है, उसी चीज को लेके करना, वो सही से समझ के करना। आज मैं कितने लोगों को जानता हूँ प्राणायाम हो, कपालभाति करना, सबकी जो डाइजेस्ट सिस्टम डिसऑर्डर होता है, कितने भी लोगों सबको डाइजेस्ट सिस्टम डिसऑर्डर होता है। ये क्यों होता है, कहते हैं मित्र करने के बाद भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो करवाते हम करते हैं। कुछ लोग टीवी देख के करते, कुछ लोग किसी का ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग उसको देख के करते। इस तरीके से विद्या हमेशा गुरु मुंह से सीखना, कभी वे आउट ही नहीं है। वाई दिस सच ऑफ द आर्ट वी हैव टेकन फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम द गुरुज। हमारे शरीर में असर पड़ गया तो उनको पता होना चाहिए, मेरे दिक्कत आ रही है तो ठीक कौन करेगा। यूट्यूब और अदरवाइज हम टेकिंग लाइव वीडियो देख के हम कर रहे हैं, हमारे शरीर में असर पड़ता है, कौन बता देगा कि क्या असर पड़ रहा है। Some exercise done, I got this sprain with the back, तो who will do the treatment? तो करना वाले को तो वो करवाना भी चाहिए।
संरक्षण भी होना चाहिए, निग्रह भी होना चाहिए, दोनों एक ही का काम है, अलग अलग नहीं है। हमारे शास्त्रों में क्या है, सृष्टि भी एक करता है, इसको निकालना भी उनके काम है। यूनिवर्सल में यही है। अति आहार, एक दूसरे के लिए आहार तो बनना बनना। हमारा शरीर है, हम निकल के तो कल किसके लिए आहार होगा? पौध पेड़ के लिए आहार होगा। पौध पेड़ से कोई निकलते हो हमारे लिए आहार होगा। ये यूनिवर्स में ये सिस्टम बना गया, किसी की भी अपना शरीर को छोड़ के जा नहीं सकता, वो दूसरे के लिए दवाई बनना बनना। हमारा डेड बॉडी होता है, क्या होंगे? वो पेड़ पौधे के लिए कल दवाई बनेगी। पेड़ पौधे फल निकलते क्या होगा? हम लोग उसको खाएंगे। छोटा छोटा सेड, दूसरा बड़ा 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 जो जानवर क्या छोटा छोटा इसको खाएगा। तो ये अति आहार में मिला हुआ है। पर बैलेंस करने के लिए हमारे पास है, जानवर के पास कुछ नहीं है। प्रकृति को छेड़छाड़ करना, प्रकृति से ठीक करना हमारे पास है, उनके पास कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं। कोविड में कितने जानवर मरा है बताओ, आदमी के अलावा? कोई जानवर मर के सुना कभी? प्रकृति के अंदर बिना सोच के वो योगासन करता है, बिना सोच के वो कपालभाति करता है, बिना सोच के प्राणायाम करता है। पता है आपको? टाइगर लायन हम 1 सेकंड के 10 बार मुंह को खोलते चारों तरफ देखते हैं। कभी बात किया आप लोगों ने? दैट इज प्राणायाम। बिल्ली हमेशा मुंह खोल के चारों तरफ खोल के दिखाते हैं, दैट इज कपालभाति। तो कभी बात किया चीज को? इसी कारण से कभी भी इसको शरीर सूखा होगा, फेस हमेशा पावरफुल होगा। अभी हम जू में जाके टाइगर के देखते हैं, उसका फेस हमेशा प्रभाव होगा, शरीर सूखा होगा। क्यों? वो कपालभाति करता है। कपालभाति कैसे करते हैं? वो मुंह खोल के आवाज निकालते हैं, इतना तेज आवाज निकलता है पूरे घंटे के बाद निकलता है। हमारे लिए अलग करना पड़ता है, उनको बिना सोच के अपना पूरा शरीर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है, आदमी में ब्लाइंड जन्म होता है, जानवर में कभी ब्लाइंड जन्म नहीं होता। कभी आप लोग इसके बारे में सुना है? कोई जानवर अंधे होकर जन्म लेके कभी आप देखे? एक ही के बताओ, आदमी के अलावा। प्रकृति ने इतना अच्छा शरीर से इतना तरीके से इसका बनाया गया, वो बिना सीखे सब कुछ काम करता है। जंगल के अंदर काफी पॉइजन वाला पत्ता होता है, काफी पॉइजन वाला फल होता है। कोई भी जानवर खा के देखा हमने, उससे पास ही नहीं जाता। उसको किसने सिखाया होगा ये शास्त्र? इसको खाना नहीं चाहिए, इसको टच करना नहीं चाहिए। हमारा हर चीज को समझाना पड़ता है, अरे इसको हाथ में रखो यार, जहर है। उसको किसने सिखाया होगा? इस फल में जहर है, आपको खाना नहीं चाहिए, वो जाते नहीं। इसी पत्ते में कांटा है, आपको पैर रखना नहीं चाहिए, किसने सिखाया होगा? प्रकृति अंदर इतनी सीखने के लिए हम भूल जाते हैं, इतने सीखने के लिए, हर मोमेंट में सीखने के लिए। मेडिटेशन का छोटा सा एग्जाम्पल बताओ, ध्यान की। हम ध्यान क्या मान के चलते हैं? आंख बंद करके बैठना ध्यान है, ये हमने ये सीखा है। Whenever sit, close your eyes, think of, concentrate somewhere else, that is a meditation. We are always thinking this is a meditation. This is not a meditation. योगा में मेडिटेशन लोग करते हैं, कहते हैं मैं थोड़ा शांति के लिए बैठ जाता हूँ, आंख बंद करके मेडिटेशन मिल जाता। मेडिटेशन सच a thing is, some disciplines ask the guru what is the meditation. तो परमात्मा ने बोले मेडिटेशन इसको कहता है, कोई अपना डिसिप्लिन तंग कर रहा था, गुरु आप बताओ मेडिटेशन कैसा होता है? अरे बता देंगे। कई साल बोला। ये दिन परमेश्वर स्नान करने गया तो साथ ही गया, पूछा मेडिटेशन कैसा होता है? कोई बात अभी बता देंगे मेडिटेशन क्या होता है, फायदा क्या होगा वो भी बता देंगे। तो स्नान करते वक्त शिष्य को अंदर बुला लिया, पानी के नीचे दबा कर रख दिया, कई देर गई तो सांस नहीं मिला, बाहर आ गया तो पूछा कैसा रहा? कह रहे समझ नहीं पा रहा, बड़ा तकलीफ था। कह रहे ध्यान भी ऐसे तकलीफ होता है, समझने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी तकलीफ होता है। वापस आने में क्या लगा? बड़ा अच्छा लगा, जो मेरा जीवन वापस मिल गया। कह रहे ध्यान भी वही है, वापस एक बार आ गए तो आपको ऐसे अच्छा लगेगा, मैं सब कुछ ज्ञान कर दिया। तो ध्यान को छोटा सा होना, और अच्छा मैं बताऊंगा आपको। जो बिल्ली अपने बच्चे के लेके भागता है, ऐसे भागता बहुत स्पीड से भागता, तो ग्रेविटी ऑफ द टीथ है वो बराबर है, कभी बढ़ेगा नहीं। उसको पता है ग्रेविटी बढ़ेगा तो बच्चा मर जाएगा, तो क्या करते? एक तरह ऐसे पकड़ के भागते। हम एक छोटा सा सामान है, मैं आपको एक ग्लास दूंगा, भाई कर इधर उधर रख के आओ, नीचे तोड़ के आएगा। कितने ध्यान है हमारा, उतना ध्यान होगा।
इस तरीके से ध्यान के ऊपर हमारा हर जो हम शुरू में भी हम बात करते हैं, ध्यान हमारा हर काम में सही रहना चाहिए। रूटीन अपने आप में बनेगा तब जाके शरीर स्वस्थ रहेगा। रूटीन बिगड़ जाते वो खराब हो जाता है। आयुर्वेद और योगा इतने बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसमें बड़ा कहते हैं ना भूमि का कोई कोने से देख के दूसरी जगह देखते हैं, ऐसा देखने के लिए कोशिश कर रहे हम। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट कहेंगे साल बैठे तो करेंगे, क्योंकि ऋषि लोगों ने जो किताब लिखा गया एक ही ग्रंथि लिखने के लिए अलग अलग जन्म लेके लोगों ने की। संहिता है आयुर्वेद में, जो किताब का नाम है संहिता, टेक्स्ट नहीं है। चारक संहिता, संहिता का तो बड़ा बृहद चीज को कहते हैं। चारक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाक्पट संहिता, अष्टांग हृदय, ये बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। अष्टांग हृदय तो आयुर्वेद पूरे जो टेक्स्ट को कहते हैं अष्टांग हृदय, 8 पार्ट है। योगा में भी हम यम नियम को 8 से डिवाइड किया गया, काफी कम कंपैरेटिव में पढ़ सकते हैं। 8 प्रकार का इलाज के तरीका है आयुर्वेद में। अष्टांग योग, अष्टांग हृदय कहते हैं उसको आयुर्वेद, अष्टांग हृदय। हम अष्टांग योग बताते हैं, उसी में भी डिविजन है 4। ये फर्स्ट जो हम 4 जो योगा में क्या कहते हैं वो राजयोगा, हद योगा। सेकंड जो 4 आता है वो राजयोगा, उसी में 2 डिविजन है। आयुर्वेद में भी 8 प्रकार के जो डिविजन दिया गया, अलग अलग शाखा बनाया गया। उसमें पेडियाट्रिक्स है जो हम मॉडर्न में कह रहे हैं, सर्जरी है, ENT है, इस प्रकार सबका अलग अलग है। अभी हम सेकंड क्लिप पे जाएंगे, अभी छोटा सा क्लिप है, इसके अंदर आयुर्वेद पर उसको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट दिया गया। बेसिकली आज के दिन में जो 5 प्रकार के ट्रीटमेंट मेनली माना जाती है आयुर्वेद में, दिस कॉल्ड इज पंचकर्मा। 5 टाइप ऑफ द बॉडी प्यूरिफिकेशन, वो इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन भी। उसके बारे में छोटा सा क्लिप बता। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, there are 3 doshas. One is called vata, one is the second called is pitta, third one is kapha. According to our age we can divide it into all 3 doshas. When you are taking the birth up to our बाल्यकाल, मतलब कब तक जो हम बच्चे रहते हैं उस टाइम तो हमारे शरीर में पित्त चलता है, कब्ज चलता है। आफ्टर दैट हम थोड़ा यंग होते आते आते हमारे शरीर में पित्त काम करना शुरू हो जाता है। ये जो होते शरीर में वात का प्रकृति आ जाता है। Balance is required. When the 3 doshas imbalance, then हमारे शरीर में उस प्रकार की बीमारी आ जाती है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में डिपेंड अबाउट देयर जॉब। सपोज मैं सिलाई का काम करता हूँ तो मेरे पाँव ज्यादा देर काम करता है, तो एज के पहले भी बीमारी आ सकती है। सपोज मैं एक ही अंग से पूरा काम करना पड़ता है मेरे को, मेरे ये क्या करता है कॉबलर का काम कर, ब्लैक स्मिथ का काम कर, उसका हाथ के हाथ काम ज्यादा है, तो वाद रोग जल्दी आ सकते हैं, बिफोर द एज आ सकते। पहले हमारा लॉन्गेविटी ऑफ द ह्यूमन था 400 साल था। अब आप सोचेंगे तो हैरान हो जाए, हमारा लॉन्गेविटी 400 साल था। बाद से चलते चलते 120 आ गए, तो करीब लोग जल्दी मर रहे, भाई दिक्कत आ गई इसमें। दिन ऋषि लोग बैठ के सोचने लगा ये क्या कर भाई, 400 लग रहा था सब तो 150 में आ गए। तब जाके हमारे आयुर्वेद साइंस को जोड़ने जरूरत पड़ा। पहले योग में काम कर रहा था, लोग अपना काम कर रहे थे, योग के साथ काम हो जाता, दिक्कत ही नहीं। ये लॉन्गेविटी कम होता है, हम लॉन्गेविटी में ज्यादा बात हम करें, अभी मॉडर्न साइंस में ज्यादा लॉन्गेविटी हो रहा है। सच्चाई में हो रहा है नहीं हो रहा, सच्चाई में कम हो रहा है, लॉन्गेविटी है नहीं। अभी हमारा आज के जो दिन में हमारा नाना नानी को देख पा रहे हैं, वो तो पहले जा चुका हो, तो लॉन्गेविटी अभी कम होते जा। कारण क्या, लाइफस्टाइल बदलने से, रूटीन ना होने से, बीमारी ज्यादा पैदा होने से हमारा डेथ रेट बढ़ते जा। According to the population is there, but the thing is according to the disease wise अभी दिक्कत जा रहा है, लॉन्गेविटी है नहीं आदमी में, पुराने तरह से उतना नहीं हो रहा। हम 20-30 साल पहले अपने नानी नानी के देख सकता है, चाचा चाची के देख सकता, आज के दिन में 55 में डेथ ज्यादा हो रहा है, रेशियो बढ़ते जा रहा। तो ये इधर ये दोष में ये कारण देते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द जॉब द दोष विल बी इंक्रीज। छोटा सा इसमें पता है, सिलाई काम करने वाला होगा, इस तरह के जो भी एक अंग से काम करना है उनको, उनके लिए दिक्कत आता है हमेशा, वो ये दोष पहले आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन बाधा, बाधा किसके डिपेंड कर रही है, ये हम जो बात कर रहा था ऋतुचर्या, ऋतुचर्या ये मिल जाती, स्पेस और ये
उसी में कोई परिणाम होता है, उधर वादा बढ़ जाती है। किधर बारिश होता है ना, मेरा मम्मी पापा देखो आज पैर दर्द हो रहा है भैया कुछ गड़बड़, तो ये समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग द क्लाइमेट वादा इस वर्किंग शरीर में। फिर पित्ता, फायर एंड वाटर। तो हमने खाना दिन में कुछ गर्मा गर्म खा लिया, साथ उसको थोड़ा बिगाड़ मतलब बिगड़ के कोई खाना भी ले लिया तो और जलेगा। करे आज पूरे शरीर में गर्मी ज्यादा लग रहा है, ज्यादा स्पाइसी तो खाया और ज्यादा कुछ खाया तो नहीं मैंने, तो ये समझना पड़ेगा जो पित्त चल रहा था वो इंग्लिश हो चुका है। इंग्लिश हो ज्यादा क्या करेगा, तो एब्डोमिनल पेन होगा, नहीं तो मोशन शुरू हो जाएगा, लूज मोशन हो सकता है, ये सब पित्त की वजह से। तो इसमें ये कारण क्या हो रहा है, ऑलरेडी हमारे शरीर में पित्त था, हमने खाने के साथ पित्त को बढ़ा दिया और बिगाड़ दिया। देन कबा, कबा कहाँ से आता है, एर्थ से, वाटर से। वाटर फॉर्म में हम सबको मान सकते हैं, मिल्क आल्सो वाटर फॉर्म, नो डाउट। तो कफ ऑलरेडी शरीर में बढ़ा हुआ है, अभी हम याशी को बात कर रहा था, दूध के यूसेज से और बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हमारे लिए क्या, हम तो प्रोटीन के लिए मिल्क पिया, पर यहाँ क्या काम होगा, वो वाद को बढ़ा दे, कफ को बढ़ा दे, बिकॉज ऑलरेडी कफ है। इफ यू टेक इन द सच प्रोडक्ट दैट ऑलरेडी हैव द फैटी, तो कफ को और बढ़ा दे। तो ये इसके साथ मिला हुआ है, दोष के साथ, ठीक है। फंक्शन तो दोषास, ये तीनों दोष कैसे फंक्शन करते हैं। वादा, this is the energy responsible for all movements in the physical body. It is not the air of the external environment, but subtle energy that governs biological movement, controls breathing, movement of muscles, movement of the food through the digestive tract, and the nervous impulses from the brain. It is also governed our sensory and mental balance and orientation, and promotes mental and adaptability of the compensation. This is a function of the Vada. Function of Pitta. It is the principle of fire and energy metabolism. It is responsible for all chemical and metabolic transactions in the body. It is regulates digestion, absorption, assimilation of the body, and temperature. It also governs our mental digestion, our capacity to preserve reality and understand things as they are. This is a Pitta nature, basically. Functions of Kapha, abhi humne bola. This means that which holds the things together. It provides substances that give support or provides all structural principles of body tissues. It promotes anabolism, the creation and growth of new cells, and also cell repair. Cell repair, ये आपको याद रखना. It lubricates our joints, muscles and skin, help and heal wounds, maintain the immunity. Kapha provides strength, vigor and stability. ये जगह पे strength भी देता है, vitality भी देता है. It also provides emotional support of life and governs styles like love, compassion, patience and forgiveness. Character भी adopt कर सकते हैं प्रकृति से. कहते हैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो बंदा, ये मेरे को अच्छा लगता है. तो क्यों, कारण क्या है, वो उनकी गलती नहीं है, उनके शरीर की प्रकृति की गलती है. हम कहते हैं ये टीचर मेरे को अच्छा लगता है, यार ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरे को समझ आता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका शरीर को जो प्रकृति है उस प्रकृति उनको भी चल रहा है. दैट वे यू आर लाइकिंग फॉर हिम. उनको काम क्यों लगता है, उनका शरीर हमारे को याद आ रहा है. हमारे शरीर की प्रकृति और उनके प्रकृति में कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा. देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट, और बॉडी कह जाता है. एक्सेप्ट नहीं होगा तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज मैंने कोई मेडिकेशन ले लिया, तुरंत वोमिटिंग आ गया, दैट मीन्स व्हाट, वो सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहे ये मेरे को नया चीज है, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है. तो देन तुरंत हम क्या करते हैं, हमारा उल्टी हो जाता है. कभी हम कोई खाना बाहर से खाया, वो लेके देखेगा पहले डाइजेस्ट करने के लिए, वी नॉट डाइजेस्टेड देन कम हो. वो कोई बीमारी नहीं है, वो अंदर का सेल एक्टिव, वो समझ नहीं पा रहा ये क्या खाया, उसको टेस्ट समझ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा. दैट ओनली द कमिंग द वोमिटिंग. सीट ऑफ द दोषा, वादा इन कॉलम, पित्ता इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको पहले कह दिया, कफा इन द चेस्ट. ये तीन जगह पे बढ़ जाए. वादा और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इधर ये काफी जगह पे जा सकते हैं और बॉडी में कहीं जा सकते हैं. वायु मीन्स, वादा मीन्स वायु, शरीर में पूरे शरीर में वायु चलते रहते हैं, तो कभी भी हमारा कहीं भी डिस्टर्ब कर सकते हैं. पित्त और वैसे अग्नि, जो हमारा जो डाइजेशन में डिपेंड होता है. कफा एक तो हमारे को जल्दी पता चल जाता है चेस्ट में, मैंने कफा इसे इंग्लिश हमारे तुरंत हमारा कंजेशन हो जाता है.
सांस लेने में दिक्कत होते है, सांस लेने में दिक्कत है, ज्यादा चल नहीं पाता है, ज्यादा सीढ़ी चढ़ नहीं पाता, तुरंत आपको पता लग जाता है दो कफ वाइस डिस्टर्ब। दोषा इन देयर क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वादा बड़ा लाइट होगा, फ्लेक्सिबल बॉडी होगा, इसलिए में अंडरवेट होगा, टू टॉल एंड शॉर्ट, अंडर डेवलपमेंट ऑफ फ्लैट चेस्ट्स, लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना वादा में, नीड स्वीट फॉर साल्टी टेस्ट। आप समझ लेना, कभी आपको ज्यादा पसंद आ गया मीठा, समझ में आपको वादा आपको पकड़ा हुआ, वो प्रकृति आपको तंग कर। कॉन्स्टिपेशन द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, लाइट मसल रिस्पेक्ट, वॉकिंग क्विकली, ईटिंग क्विकली एंड ऑलवेज इन रश, ये सब वादा प्रकृति में रहते हैं। वादा हैव द क्लैरिटी ऑफ माइंड, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, गुड इमेजिनेशन एंड कम अप विद न्यू आइडियाज, दिस आल्सो वादा प्रकृति में आता है। क्वालिटी ऑफ पित्ता, मीडियम लाइट एंड बिल्ड, सेल्डन लूज, गेन मच वेट। अब देखा होगा पित्त में जो लोग, कुछ लोग कहते खाना खाते शरीर में पकड़ता नहीं, कुछ लोग खा ले तो पूरा मोटा हो जाता, इससे पित्त की वजह से। तो इनबैलेंस ऑफ द हार्मोन्स, कुछ लोग इतनी भूख लगता है खूब खाएगा पर शरीर में दिखाई नहीं देता, तो ये समझना पड़ेगा पित्त है पर इनबैलेंस है, हार्मोन के साथ इनबैलेंस हो चुके, तब जाके दिक्कत है। ईयरली ग्रेइंग लॉस है, ये सबको पित्त की वजह से। मोर्स एंड फ्रैंकनेस है कॉमन, ये पिंपल्स है वो आता है वो पित्त की वजह से। स्वीटी हैंड्स एंड फीट, प्रेस्पर कोइटे ब्लड, स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, गुड डाइजेशन, हायर बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ पित्त से। ये फीवर भी पित्त से आता है, जो हमारे कोविड सब जो आता है पित्त की वजह से आ रहा है, पित्त का जो प्रकृति की जो ग्रेविटी बढ़ते ये सब बीमारी आ जाती है। तो फायर कितना बढ़ाएगा उसी से अकॉर्डिंगली दर्द बीमारी आया। फीवर आल्सो 5 to 5, उसका भी ना तो टेम्परेचर तो बढ़ता है गर्मी, तो इसी कारण से फायर की वजह से। नाउ द लास्ट इज कफा, स्ट्रॉन्ग हेल्थी वेल डेवलप्ड बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड हेवी बोन, gain weight easily and can't be taken off easily. They have slow digestion, skin is soft, smooth, is love candies, cookies and chocolate, ये कफ वालों को ज्यादा पसंद होता है, देख लेना जो भी पसंद करता है। ये आपका सिंपल लॉजिक है, जो चीज हमारा शरीर में दिक्कत है वो चीज को पसंद करेंगे। आप शुगर पेशेंट में मना करें शुगर मत खाओ, उसको शुगर ही पसंद होगा, तो डाउट ही नहीं इस बारे, क्योंकि प्रकृति का स्टाइल है। किसी बीमारी उसी के बढ़ाने के लिए होगा, क्योंकि वो कभी चाहता नहीं है इसको दवाई छूटवा दे। तो लाइफ लॉन्ग इसको दवाई लेके चलने के लिए हमारा बॉडी ये बोलेंगे भाई तुम ये खा ले, दवाई तो है ना, बीमार अगर दवाई तो है तो हम बीमारी को हम पसंद करेंगे ना। मेडिसिन ये तो फिर ऐसा ढूंढना पड़ता है, दवाई है तो क्या दिक्कत है, खा लो। तो शरीर ही कहते हैं कोई भी बीमारी हमारे शरीर में रहता है उसी चीज को पसंद करे। मलयालम में एक प्रोवर्ब्स है, इच्छितम पाले वैद्यम कल्पितम पाले, किसी पेशेंट को किसी बीमारी के दूध पीना नहीं चाहिए था, तो दूध उसको पसंद है, तो वैद्य के पास चला गया, वैद्य ने बोला इसको दूध पी ले, तो उसको बड़ा हैप्पी हो गया, देखो किसी बीमारी दूध पीना नहीं चाहिए, वैद्य ने कहा ये पी ले। तो इच्छितम पाले वैद्यम कल्पितम पाले, तो जो डिसीज से दोष हमारे साथ बड़ा हुआ उसको जो चीज खाना नहीं चाहिए वो हमारे को पसंद हो, इसी को कहते हैं नियंत्रण, मनोनियंत्रण। वहां सब पे योगा का पार्ट जरूरत पड़ जाती है। निरोग रहने के लिए नियंत्रण में आना पड़ेगा, कई चीज को छुड़वाना पड़ेगा, तब जाके रोग से निरोग में आ सकते। तो भगवत गीता में एक शब्द है राग विद्वेष रोगा, राग विद्वेष रोगा, राग और विद्वेष दोनों हम छोड़ना पड़ेगा। राग विद्वेष रोग, राग मतलब पसंद कर, विद्वेष ना पसंद कर, लाइक और डिसलाइक ये हमारे दिमाग से आपको छुड़वाना पड़ेगा निरोग रहने की। तो आगे से आपको कभी ये नहीं तो वो टीचर आते ये टीचर करा, मम्मी ठीक है पापा मेरे को डांटते वो करा, ये खाना मेरे लिए अच्छे दूसरे खाना करा, तो वो फ्रेंड से मेरे लिए अच्छे दूसरे फ्रेंड करा। तो ये बीमारी के लक्षण है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा बहुत सिंह, राग विद्वेष रोगा, राग कहाँ पैदा होता है, रोग का लक्षण स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं किसी आदमी से पसंद नहीं हूँ, उससे मिलना मैं पसंद नहीं करूँ, तो सामने आ गया तो मैं पूरा अग्रेट हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो विद्वेष से रोग पैदा होता है, राग से भी पैदा होता है,
नहीं जैसे विदेश से पैदा हुआ, तो ये दोनों आदमी के लिए अच्छा नहीं है, मनुष्य शरीर के लिए अच्छा नहीं है। साधु लोगों ने अपने स्पीच में पूरे क्या कहते हैं, हर चीज इक्वल है, अलग नहीं है। हम उसके साथ भी जीने, इसके साथ भी जीने, दोनों हमारे को प्रैक्टिस होना चाहिए। मेरे को बारिश अच्छा लगता है, गर्मी अच्छा नहीं लगता, अरे प्रगति है, कुछ भी कर सकते हैं, उसको आपको अब्जॉर्व करना पड़ेगा। हम सुबह से निकल के तो क्या कहते हैं, पापा ने डांट दिया पापा खराब, मम्मी हमारे साथ रहते तो मम्मी, ये अच्छा और खराब भी चीज है नहीं, दोनों एक ही से नजर पे देखेगा तो हमारे शरीर, क्योंकि वॉट एवर थिंग्स वी आर थिंक टू आर कीपिंग द माइंड, द सेल विल बी एक्टिवेट, वो हमेशा सेल एक्टिवेट करने के लिए कारण हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी भेजा, नेगेटिव एनर्जी निकले। इसलिए साधु के बीच जो स्पीच होता था क्या कहते हैं, आम का फल डाला तो आम ही निकलेगा, वो नारी नहीं निकल सकती, कहते हैं ना, आम का फल डाला तो क्या निकलेगा, आम के बीज डाल दिया तो आम ही निकलेगा। तो शरीर के अंदर कितने नेगेटिव थिंकिंग लेते जाएगा, फिर पॉजिटिव आना मौका नहीं मिलेगा, कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आज से आपको ये समझना पड़ेगा, ये इच्छा से हम थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, इच्छा कुछ नहीं रहेगा, इच्छा में रहेगा ये हमारे से कॉन्ट्रडिक्शन तो आएगा, राग और विद्वेष रहेगा, विद्वेष रहेगा उसमें तो नेगेटिव निकलना नहीं, राग इसमें तो कभी नहीं, राग में इसमें सब में लिमिटेशन, कहते नहीं है अमृत होता है, फिर ज्यादा होने से पेट खराब हो जाता, आइसक्रीम तो अच्छा है, टेस्ट है, फिर ज्यादा लेने से पेट खराब हो जाता, मीट अच्छा है, ज्यादा लेने से पेट खराब होगा, लूज मोशन जरूर होगा। जीद और मोह दोनों का हमेशा लड़ाई होता है, जीद जो पसंद करता है वो पेट पसंद नहीं करता, पसंद जो पसंद करते हो जीद पसंद नहीं करते। हम खाना हमेशा कहीं सेलेक्टिव होते हैं, टेस्ट की वजह से सेलेक्टिव होता है, ये हमारे को नहीं पता, हमारा वो डाइजेस्ट सिस्टम इसको पसंद करता नहीं करता। लूज मोशन बता रहे गड़बड़ हो गया भाई, ये तो सोचा नहीं था मैंने, इतना दिक्कत होगा। तो जीद का जो टेस्ट है वो पेड़ का टेस्ट नहीं होगा, पेड़ की जो टेस्ट है जीद को पता नहीं है, पर अपने शरीर से तो आपको इसको सेलेक्टिव करना पड़ेगा। कुल मिला के स्वस्थ देखने के लिए शरीर को सिस्टम में लेके आना, एक मेन्यू के साथ तो चलना। हमारा टाइम था, हमारा लाइफ में मेन्यू लेके चलता था, सुबह ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, शरीर को शुद्ध रखने के लिए टाइम निकालना है, ऐसा कुछ, वो अभी कुछ नहीं। अभी हमारा जो हम शुरू में जो बोला कि कभी भी स्नान करो, कभी भी सोओ, कभी भी उठो, भी ऐसे नहीं चले। निरोगी रहना है, प्रगति साथ चलना पड़ेगा, इसके लिए अलग कोई उपाय नहीं। प्रगति साथ नहीं चलेगा फिर दवाई साथ चलना पड़ेगा, दवाई साथ चलेगा लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। फिर कैसा होगा, छोटा सा गाड़ी हमने कुछ रिपेयर होकर ठीक करने के लिए दिया, पहले टायर चेंज करेगा, फिर इसका क्रैंक चेंज करेगा, फिर मलकाड़ चेंज करेगा, फिर इसे हैंडल चेंज करेगा, एक एक चेंज करते रहेगा, वो एक एक चीज खराब होते रहेगा। कभी भी मैकेनिकल में जाकर चलेगा तो काम बढ़ाते देगा, कभी आपको छोड़ेगा। मेडिकल साइंस भी ऐसे कि एक बार आपने मेडिकल में चला गया, फिर डेंटिंग बेंडिंग चक्कर पे चलते रहेगा, कुछ ना होता बीमारी, क्योंकि ये जो भी चीज हमारे ठीक करने के लिए हमारे को दे रहे वो हमारे लिए सूटेबल नहीं, के कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। पौराणिक टाइम में एक डिसीज के लिए जो दवाई दिया गया, बच्चे के लिए अलग है, यंग के लिए अलग है, और टीनेजर्स के लिए अलग है, बुजुर्ग के लिए अलग। अभी हमारा क्या डिसीजन क्या है, आधा टैबलेट दे दो चलेगा, पूरा माँ खा सकता है, आधा टैबलेट बच्चा खा सकता है। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसके लिए ये टीके की नहीं। अभी पैरासिटामोल हमने खा लिया, कहते एक टैबलेट बच्चे है ना, आधा दे दो तो चलेगा। उसका इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका बॉडी की जो ताकत है, ये आधा लेने के भी ट्राई किया कि नहीं, हमारा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, वो नुकसान तो करेगा। कभी बच्चे को हम थोड़ा सा टैबलेट देने भी फीवर रुकता नहीं है, बढ़ते जाता है। तो हमारा में क्या है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज दिया ठीक नहीं है तो हम डबल डोज लेते। हमारा ये नहीं पता छोटा डोज में बॉडी रेस्पॉन्स दिखाने, मतलब रेस्पॉन्स ही नहीं है तो उसको देने ही नहीं, या भूल जाते। हमने भी कोई दवाई लेके आया, एक डोज लिया करे कोई फर्क नहीं आ रहा यार, तो डबल डोज लेके देख लेंगे। तो एक डोज लेने में ठीक नहीं आना, तो ये समझना चाहिए हमारा बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है वो। हम उल्टा समझ के रखते हैं डबल डोज ले लेंगे, डॉक्टर भी कहते हैं डबल डोज ले लो ठीक हो। तो ये समझना पड़ेगा अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से छोटा डोज भी काम नहीं कर रहा है ना।
यही होगा। इसके अलावा मेरे से कुछ क्वेश्चन सेक्शन भी है मेरे से, है ना। somebody have sent some questions something, I think, so you can go on that. Otherwise anybody wanted to ask anything, ask it. That's also we can clear it. Thank you so much, sir. That was a splendid introduction of yoga and Ayurveda. However, there are some questions that our students want to ask you. So, the first question we have for today is, can you please elaborate Kalari Marma Chikitsa for our audience? Kalari Marma Chikitsa, this sort of vast subject. In Ayurveda, little bit of the Marma Shastra there, because Ayurveda Marma Shastra is used for the surgery purpose by the Sage Sushruta. छोटा सा किताब है, ज़्यादा नहीं। शरीर व्याकरण है, उसमें सर्जरी में कहाँ कहाँ काटना चाहिए, कहाँ कहाँ स्टिचिंग होना चाहिए, सब पे बड़ा लिखा हुआ। According to the Marma Chikitsa in the Siddha medicine, lots of the rishis written. Very popular is the Sage Agastya. He written lots of books. Every book have the more than slokas, 2,000, 7,000, 12,000, 15,000 slokas. तो इतने बृहत किताब। तो हमारे ये समझना पड़ेगा ये क्या काम करता है। कलरी मर्म चिकित्सा, कलरी से शब्द से बेसिकली फ्रॉम द डिराइव फ्रॉम द कलूरी संस्कृत शब्द, वेयर यू डूइंग द प्रैक्टिस ड्रिंक, उसको कलरी कहते हैं। मर्म इज अ वाइटल पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, चिकित्सा इज अ ट्रीटमेंट। तो आज के दिन में हम सर्जरी के जो आयुर्वेद में बहुत कम करता जाती है, क्योंकि इनको जरूरत नहीं पड़ता। वो इस चीज में इसलिए नहीं करता, वो काट बोलने का थोड़ा अर्ली टाइम में ब्राह्मण लोग करता नहीं था, वो थोड़ा अशुभ माना जाता है। किसी के भी शरीर में काट फूट करना वो अशुभ माना जाता है, तो इसलिए वो ग्रेजुअली लॉस होता है। आज के दिन में आयुर्वेद में सर्जरी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो मॉडर्न में तो बहुत खूब चलता है, हर चीज को काट फूटने के लिए पहले आ जाता है, और छोटा सा भी दिक्कत के लिए आएगा करे इसका काटेंगे, ये तो पढ़ाई भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो हमारे में क्या है, बेसिकली इन आयुर्वेदा दिस कॉल्ड इज शल्य चिकित्सा, इन संस्कृत शल्य चिकित्सा मीन सर्जरी। In Marma, in Siddha medicine, always looking for the healing without medication. Suppose anybody having the rising the blood pressure, if you putting or keeping some finger on the some parts of the body, the BP will come down. Somebody have some accident there on the unconscious, if you put your finger to some place to revive the thing, this come back. The Kalari Marma keeping for the रिवाइवल ऑफ द लाइफ, कोई भी नुकसान पड़ने से वापस लेके आने के लिए इसका इलाज होता है, तो फायदा करता है। आयुर्वेद में सर्जरी पर्पस के लिए इसका यूज किया गया, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। सबसे बड़ा चीज इसमें इंडस्ट्री मेडिकेशन नहीं है इसका। बिना मेडिकेशन से शरीर के अंदर 108 वाइटल पॉइंट्स है, उसमें कहीं ना कहीं दबा के इसको हम अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे लेके आ सकते हैं। किसी भी कारण से बीपी हाई हो गया, कोई एक्सीडेंट से गिर गया, कुछ पार्ट टूट गया, ये सब ट्रीटेड थ्रू द कलरी मर्म चिकित्सा, इसका स्पेशलिटी। सेकंड क्वेश्चन। Thank you, sir. The next question for the day is, what are the some of the remedies that can treat coronavirus? अभी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है ये, आज तक हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं इसके लिए। We are the such system we have in India. 1000 years back we are doing this thing. Still government level they didn't anything for this period. What is the reason we began this? That much of the modern science adopted to our Indians. इतने हमारे अडॉप्ट कर चुके इंग्लिश मेडिसिन, हम कहने नहीं। कितने लोगों को होम रेमेडी के ऊपर जानकारी आज के दिन में? हम घर पे बना गया, पहले जो लेडीज होता था उसको, घर का जो नारी होता था वो किचन का पूरा सामान से सब कुछ आता था। आज वो सोचते किचन से जल्दी कितने जल्दी भाग के आओ। घर के फिजिशियन लेडी था, मम्मी था, उनको हर मेडिकेशन आता था। तब हमारे सब्जेक्ट आप जो कोविड के ऊपर आप जो बात कर रहा था, इस क्लासिफिकेशन मेडिसिन बहुत है, होम रेमेडी भी बहुत है। आज के दिन हम लोग होम रेमेडी करके इसको पार किया। अकॉर्डिंग मैं आज तक अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया, आपको लोगों के सामने बैठा हूँ, अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया।
होम रेमेडी हमने जो पैंडेमिक टाइम में भी होम रेमेडी भी चल रहा था, सबके लिए वही चला रहा था। छोटा सा मेडिकेशन था, वही सबको वही दे रहा था, जो पेशेंट है उनको भी वही दिया। आयुर्वेद में उस टाइम में प्रिस्क्राइब किया गया गार्गलिंग विथ अजवाइन और हल्दी और नीम का पत्ता, इससे सबसे स्टीम लेना था। इसके अलावा गार्लिक, जिंजर, पेपर, इसका गार्लिक और जिंजर के जूस से निकाल के पेपर साथ मिक्स करके, वो भी एक मेडिकेशन था, तो इसको फीवर के खत्म करने के लिए हम लोगों ने उस टाइम जो ये सब एप्लीकेशन करने, ये सब तो कोविड में जो आयुष का रिकमेंडेशन था। इसके अलावा कोई चीज आयुर्वेद करने के लिए मना था, एक तरह से देखे गया। मेडिकेशन बहुत था, number of the medicine then, thousands of formulas there, but the government given the adoption there, only Ayush can say what is the medicine you can give. तो आयुष ने क्या किया, छोटा सा सिंपल प्रोसीजर निकाला, हल्दी दे दो नींबू जूस के साथ, कुछ बोला पेपर दे दो, कुछ ने बोला अदरक दे दो। इसके अलावा नंबर ऑफ द मेडिसिन देयर। व्हाट आई हैव डन टू द अवर पेशेंट, थोड़ा सा आंवले का पाउडर लिया है, दिस यू कैन आल्सो ट्राई। Then hardegi powder, the both of the equal quantity. Then 1/4 of the black pepper, 1/4 of the pipili. You heard about pipili? This will market in. The 4 combination को एक पाउडर फॉर्म में पाउडर, इससे पूरा पाउडर लिया, इसको 200 ml पानी में 1 चम्मच डाल के हमने गर्म कराया, 100 ml तक गर्म करके 100 ml क्वांटिटी को दिन में 4 बार पिए। तो कंटेंट्स क्या था, आंवला, आंवला है इन विटामिन सी, तो इन लोग विटामिन सी का कमी था, वो प्योर करे। हरिदेगी, हरिदेगी 64 टाइप का फीवर को दूर करते, बाउल को क्लीन करते, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते, ऑक्सीजन को पैदा करते, ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है वो हरिदेगी। पेपर एंड पिपल, ये दोनों इतने भी हाई डिग्री के आपका फीवर हो तुरंत नॉर्मलाइज हो जाता है। ये चारों कॉम्बिनेशन में हमने इसी टाइम का जो बीमारी में लोगों को दिया गया, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। कोविड पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव होकर आ गया। आपको सुनने में बिल्कुल सिंपल मेडिसिन लगा होगा, बहुत अच्छा काम है। तो ये इसी चीज में अभी थर्ड वेव के लिए हम वेट कर रहे हैं, बच्चे में आएगा। अभी भी जो तकलीफ हो रहा है उसमें भी एडवाइसिव यही है, हफ्ते में 3 बार कम से कम आपको गार्गलिंग का प्रोसेसिंग करना है, स्टीम लेना। स्टीम में आपने नीम का पत्ता यूज कर सकते हैं, हमेशा नीम का पत्ता, अजवाइन, नहीं तो आपका पुदीना, ये सब कुछ हमेशा स्टीम लेने पहले कपड़े में बांध के डालना, डायरेक्टली नहीं डालना। ऑल लीव्स हैव द ऑयल कंटेंट्स, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑयल लीव्स हैव द ऑयल कंटेंट्स, इफ यू पुट इन डायरेक्टली तो ऑयल भी कम होगा। हमारा शरीर के अंदर जो स्टीम का वजह ऑयल का है, तो और कंजेशन और बढ़ा देगा, टेम्पररी आपको रिलीफ देगा, फिर बाद में कंजेशन कभी आ सकता है। तो जो भी पत्ता डालेगी नहीं, इतर जो वो कपड़े में अंदर बांध के स्टीम के अंदर डालना, तो वो ना ज्यादा डाइल्यूट ना हो जाए। तो पुदीना का पत्ता यूज कर सकते हैं, अजवाइन से कर सकते हैं स्टीम, नीम के पत्ते से कर सकते हैं। ओरल मेडिसिन में आपको नीम के नींबू के जूस के साथ हल्दी मिला के ले सकते हैं, जिंजर और लहसुन और शहद तीनों मिला के 5 ml दोनों की जूस ले सकते हैं, 10 ग्राम का शहद मिला के आप ले सकते हैं। ये भी आपको प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब क्लासिकल मेडिसिन में जाना चाहते हो आयुर्वेद में, उसके अंदर इंदुगांधम कषायम है, आप वो ले सकते हो। दशमूल गणत्रय कषायम टॉनिक है, वो ले सकते हैं। दशमूल रसायन क्रिया में आता है, वो ले सकते हैं। अगस्त्य रसायन वो ले सकते हैं। आयुष ने डिस्क्राइब किया गया च्यवनप्राश, वो ले सकते हैं। ये सब प्रिवेंशन में अच्छा काम करता है। ठीक है, आगे। Thank you so much, sir. The next question for today is, how do we differentiate between Ayurveda methods and unverified home remedies that may not work? Unverified remedies हम किसको कहेंगे? We don't have the research purpose. It's not unverified. How can say that? Sir, because this is actually our inquisitiveness, because a lot of time we, just like in the session, beginning of the session, you also said that it's like not one size fits all, but still हम वो चीज करते हैं जो हमें पता भी नहीं कि हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो कैसे हम समझें? इसमें छोटे से बताऊं,
सबसे पहले हमारे इंडियन में जो सिस्टम में क्या है, कोई चीज अनुभव आता है उसको साइंटिफिक मेथड का प्रूफ नहीं चाहिए। जैसे राइट, मेरे को कोई भी चीज से फायदा शरीर में हुआ था उसके ऊपर मैं साइंस के पीछे तो जाना नहीं है मेरे को। मैं कहता भाई मेरे को फायदा हुआ, बाकी मेरे को नहीं पता। तो whenever we feel, whenever we got the result, that is a scientific। ये आज के मॉडर्न साइंस के साथ ये इतनी दिक्कत है, फायदा हो गया तो साइंस है, खराब हो गया तो खराब, गड़बड़, वो अनसाइंटिफिक। इंडियन में सबसे बड़ा मेंटालिटी में यही है, जो काम करता है साइंटिफिक है, काम नहीं करेगा कभी गलती से अनसाइंटिफिक। स्पोर्ट्समैन कब तक स्पोर्ट्स अच्छा कर पा रहा है, ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। व्हेन ही हैव द इंजरीज, ये खराब है, कोई काम नहीं। दिस इज अ वाइड कॉन्सेप्ट ऑफ द बिटवीन द इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। वो खराब चीज को भी दोबारा उड़ा के लाके करके देगा, कुछ तो होगा इसके अंदर। व्हाई दिस थिंग इज गॉन इन द बैड कंडीशन, मे बी बिगिन द रीजन। हम रीजन तो ढूंढते नहीं है, ठीक। तो अनसाइंटिफिक हम कह नहीं सकते। कोई भी चीज बनाने के पहले हम कहीं ना कहीं तो हम सुना होगा, करा होगा, करके देखा होगा, तब जाके तो हमारा, हम तो कोई नई चीज क्रिएट तो किया नहीं है। तो हमारे पूर्वी लोगों ने जो लिख के दिया है, नहीं तो हमारे समझा कि हमारे दादा नानी सब बोले भाई ये सब मिस करके खाने से बीमारी जा सकते हैं। उन्होंने हमारे को बचपन के दिया, तब तो हम जाके उसमें ठीक हुआ है। उन्होंने को भी किसने दिया होगा। तो इसमें साइंटिफिक एंड साइंटिफिक का मतलब भी नहीं है, पर इसका हम ये समझना पड़ेगा, कोई चीज हमारे शरीर में अपने आपको करके रिजल्ट आने पर उसको कोई साइंटिफिक मेथड नहीं चाहिए। वाटर का कंटेंट हमारे बॉडी से डेंसिटी ज्यादा कम है, हम थोड़ा क्रॉस चेक में जा रहे हैं। वाटर की डेंसिटी हमारे शरीर से ज्यादा कम है, ज्यादा है कम है, ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। मेरे को स्विमिंग नहीं आता, मैं स्विमिंग करने गया तो मैं क्यों नीचे चले जाता, मर जाऊंगा। तो साइंटिफिकली व्हाट सेइंग, शरीर से पानी से ज्यादा भारी है, पानी तो हम ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों जा रहा है। तो साइंस में ये कहना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज आपको अपने शरीर में अपने अनुभव में आ गया, वो साइंस है, किसी के प्रूफ नहीं चाहिए। वो अनसाइंटिफिक मेथड में कभी नहीं जाएगा। अनसाइंटिफिक में डाउट हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आज की जो मिक्सचर है कोई भी दवाई बनाने में, नहीं तो जानकारी, वो ट्रेडिशनली हैंड ओवर नहीं हो रहा है। हम लोग में कितने लोगों को पता है, हमारे नानी ने, नाना ने, चाचा ने, चाचा ने कितना इलाज हमारे को पता है, किसी के एक को पता। अपना पापा मम्मी ने बोले देखो तेरे को बुखार है, जाके ये खा लो, थोड़ा सा पीपर खा के देख लो, कभी बोला है। ये ट्रांसलेशन खत्म हो चुका है। हमारा मेंटालिटी फीवर होगा, पैरासिटामोल लो, सिर दर्द आ गया डॉक्टर के पास जाओ। तो वो जो दे रहे वो साइंटिफिक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, जो मेहनत करके इस चीज को सब बनाने के लिए मेहनत लगता है, मेहनत से साइंटिफिक मेथड निकलता है। बिना मेहनत तो कोई साइंटिफिक मेथड निकलने वाला नहीं है। तो जो भी बनेगा उसको ये नेचुरल एक बार समझना पड़ेगा। सपोज किसी ने कह दिया तो आपको शुगर है, आप मीठा ज्यादा खा लो, तो सुन के तो पता लग जाता है वही तो उल्टा बता रहा, अनसाइंटिफिक है, उसका आइडिया नहीं, वैसे बता दिया। अदरवाइज मेडिकेशन में यही दिक्कत है आज होम रेमेडी में और क्लासिकल में। होम रेमेडी का जो नॉलेज जो पारंपरिक से चलता जा रहा है वो खत्म हो चुका है, 2-3 जनरेशन पहले खत्म हो चुका है। अभी हमारे मम्मा पापा के नहीं तो पापा के नहीं तो उनको पहले वालों को भी नहीं पता है। पहले इसकी डिपेंड होता था, घर के अंदर ही इलाज होता था, घर के बाहर कोई इलाज होता ही नहीं था। आज हम डॉक्टर के पास इतने बेड लगता, पहले बेड नहीं लगता, इतने बीमारी से उतने बीमारी भी पहले नहीं था। ऑनकोलॉजी हमारा इसमें आके कितने साल हुए, 25 साल हुए। ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट करके सिर्फ 25 साल हुए, उसके बाद ऑनकोलॉजी अभी देखा है कोई? ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था हॉस्पिटल में। साइकोलॉजी पहले था, आपका 15 साल 20 साल के पहले साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, नहीं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एवरी हॉस्पिटल आ गई। तो ये इसी से डिराइव हो रहा है। हमारा जो नॉलेज पास होना था पारंपरिक रूप से वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उधर ये डाउट पड़ जाती है साइंटिफिकली क्या अनसाइंटिफिक क्या। उन्होंने हमारे सामने बना के हमारा किला कम ठीक हो गया तो हमारा को साइंटिफिक हो जाता। जब भी हम सब कुछ रेमेडी मिल रहा है तो वहां थोड़ा डाउट है, काम करेगा नहीं करेगा। योगा लैंग्वेज में कहते हैं 52 है, हर काम में 52 के ऊपर चलता है। इंडियन का मेंटालिटी 52 है, इमेजिनेशन बिना तो जी नहीं सकता। कल है इसलिए तो मैं आज बात कर रहे हूँ। अपना पैसे बैंक में क्यों डिपोजिट किया गया, कल जिंदा रहे तो लेना पड़ेगा। कल के दिन होता था, कभी बैंक में डिपोजिट नहीं होता। सेविंग कॉन्सेप्ट कल के सोच के,
नहीं तो सेविंग ही नहीं होता। मैं आज कोई काम करके अलग करके रखा, कल करूंगा, क्यों? कल है इसलिए सोच के तो रखा हूँ। तो इमेजिन हमेशा साथ चाहिए, भावना के बिना जा नहीं सकता। तो वो कोई दवाई लेने वक्त भी कि इमेजिन होना चाहिए ठीक होऊंगा मैं। कब तक दूसरे से ना मिले, मैंने किसी को इलाज करने के लिए दवाई दिया, वो खा लिया, ठीक हो गया, कोई मिलने आया, पूछे कौन सी दवाई खा लिया आपने, वो कहते यार ये पता है, मैं नाम नहीं है, तो ये तो कोई बिगड़ गया, तो इसका बीमारी दोबारा पैदा हो जाती है। भावना के ऊपर चलना है, विश्वास के ऊपर चलना है। विश्वास में हमारा पूरा शास्त्र बना गया, भारतीय संस्कृति में पूरा शास्त्र विश्वास के ऊपर। अविश्वास का स्थान ही नहीं है। अविश्वास का स्थान हम इस तरीके से हो गया, हमारा रिजल्ट मिल गया तो साइंटिफिक है, रिजल्ट नहीं मिला तो अनसाइंटिफिक है ना। चल आगे। Thank you so much, sir. The next question we have from our audience is, yoga is said to be helpful with body posture and mind relaxation. Which yoga asana will be helpful to keep our mind and body fit? अकॉर्डिंग टू द जो ऋषि लोगों के हिसाब से योगा कभी भी आदमी के लिए बोला गया नहीं, बोला गया, ये फ्रैंकली बता। पतंजलि सूत्र में कभी भी योगा को घर के अंदर लेके नहीं आया, आश्रम में रखा गया। उसी लाइफ में जाने के लिए काफी चीज को आपको पालन करना पड़ेगा। एक्सरसाइज टू एवरीबडी, एक्सरसाइज कोई भी कर सकते, किसी को भी दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्म है, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, जॉगिंग है, वॉकिंग है, जंपिंग, एवरीथिंग इज फॉर एवरीबडी। योगा मेरे हिसाब से करना चाहिए किसी का डायरेक्शन को। विदाउट गुरु सच साइंस इज वेरी डिफिकल्ट, वो आपको नुकसान करेगा। फिर अभी हर जगह पे गुरु को ढूंढ नहीं सकता, तो द बेस्ट वे टू डू दैट, सम ऑफ द आसनास लाइक सूर्य नमस्कार, 12 postures merged with the word सूर्य नमस्कार, तो हम कर सकते। थोड़ा फास्ट में करें, स्लो ना करें, कर सकते। देन सम लाइक चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन, भुजंगासन, इस सब में कभी भी ब्रीथ का कॉन्सेप्ट में ना करें। ब्रीथ का कॉन्सेप्ट करने के लिए हमारे को प्राणायाम आना चाहिए, कपालभाति आना चाहिए, ताकि आदमी से हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाए। वो सब कोई गुरु से मिलकर कर सकते हैं। अदरवाइज जो एक्सरसाइज फॉर्म है वो हम काफी कर सकते, जॉगिंग, वॉकिंग, कोई भी पोस्टर फास्ट से कर सकते, उसमें कोई मना नहीं। अदरवाइज कोई सिस्टम के हिसाब से करना चाहिए। बेस्ट वे इज डूइंग द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ द 12 योगासन, अदरवाइज 10 योगासन, वो आराम से कर सकते हो, राइट और लेफ्ट। दैट इज अ वेरी एडवाइस, वो ज्यादा नुकसान का कोई रास्ता नहीं। पर ब्रीथ के साथ कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो पहले आपको ब्रीथ का कंट्रोल सीखना जरूरी है। योगासन हो जाए, कोई भी चीज हो, ये एडवाइस, ठीक है। और Sir, otherwise we have a long list of questions, but owing to the paucity of time, probably we can take only 1, 2 or more, and then we'll mail you all those questions, and if ever you find time and address we can discuss, no doubt. Yeah. Over to you, Gauri. Anyone from the audience wants to ask something? So the floor is open. Yes, Aryan, please go ahead. Good afternoon, sir. Yeah. So I have to ask something, and I mean मेरे शोल्डर के नीचे की तरफ, बैक साइड में मेरी बोन बाहर की तरफ निकलती है, तो उसका कुछ है योगा से रिलेटेड ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लमैटिक बहुत होती है नॉर्मल लाइफ में? जी, कभी भी शरीर का कोई भी अंग में दिक्कत आता है तो योगा करना नहीं चाहिए। सबसे पहले मॉडर्न सेंचुरी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। कारण क्या है, डैमेज को आपने और टच करना कोशिश, वो डैमेज होते जाए। योगा हमेशा स्वस्थ शरीर के लिए, अस्वस्थ के लिए कभी बोला नहीं। अस्वस्थ का मैंने वही तो शब्द पहले यूज किया था, मलम शरीर से जो वैदिक है, शरीर में और तरीके मल लागे तो वैद्य से ठीक करना है आपको, उसके बिना जाके योग में कुछ कर नहीं सकता। तो इसमें ऑयल एप्लीकेशन अलाउड है, ऑयल अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट मेडिकल ऑयल होता है, उसको अप्लाई करके इसको अंदर के फ्लेमेशन को पहले खत्म करना है। ये तो काफी दिन हो गई दिक्कत है ना, अभी हाथ रेस कर पा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। मतलब नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैक साइड की जो नीचे की हड्डी होती है कुछ लोगों की निकलती भी है विंग टाइप में। जी जी जी, यस सर, वो प्रॉब्लम है। ये बेसिकली जो नॉर्मली आता है, आपका जो सिटिंग पोस्ट है वो थोड़ा रॉन्ग होगा, लगातार बैठते होगा कंप्यूटर में, अदरवाइज कभी ऐसे बैठने के चांस होगा, कभी ऐसे बैठते होगा,
कभी पाँव चेयर के ऊपर रख के बैठता होगा, ये सब जो नेचर आपको चेंज करना। whenever say you try to your spinal cord is straight, उसी से काफी फर्क पड़ेगा। then instead of sitting the continuous in the computer every 2 or 1 hour something, you take it and थोड़ा बॉडी की खिला के आके बैठ जाए, वो भी फर्क पड़ेगा। ऑयल एप्लीकेशन से वेरी जरूरी है, क्योंकि अंदर के फ्लेमेशन बन जाती है। कभी कोई भी जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट से काफी फंक्शन थे, टिश्यूज फंक्शन से, मसल का फंक्शन से, उसके अंदर फ्लूइड का फंक्शन से। अभी दर्द वैसे हम एक ही साइड पे रखे तो फ्लूइड फिर वो थिक होना जो शुरू हो जाता है, वो लुब्रिकेशन मिल नहीं पाता, उसी में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा बहुत किसी को दिखा सकते हो, है ना, थोड़ा ज्यादा तंग कर रहे हो तो अदरवाइज एक्सरसाइज फॉर्म में आपको रोटेशन वगैरह कर सकते हैं। कम से कम थोड़ा लुब्रिकेशन साथ करें तो और अच्छा रहेगा। कोई ऑयल अप्लाई करके, तो तिल का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, इसमें कोई ऑयल लगा के थोड़ा बॉडी का वार्म करो, हो सकता है उसी के अंदर के फ्लेमेशन खत्म हो जाए, तो आप फ्रीक्वेंसी हाथ चला पाए। ओके सर, थैंक यू सर। जी, और कोई? Anyone else from the audience wants to ask something? जी, याशिका। Thank you sir. Good सर, आई वांट टू आस्क, आपको कैसे पता चला कि मुझे साइनस है? कि आपको कैसे पता चला मुझे साइनस है? अभी आप मेरे सामने जो बैठे सबको बता सकता हूँ। I'm curious to know about that. And so, इसका एक छोटा सा साइंस है, ये तो आप वही कह रहे हैं, अभी जो हम शुरू में कह रहे थे ना, जो साइंटिफिक हो गया तो प्रूफ है, साइंस है, अब गलत हो गया तो अनसाइंटिफिक है। सामुद्रिक लक्षण शास्त्र है, आयुर्वेद में एक पार्ट है सामुद्रिक लक्षण शास्त्र। शरीर के एक एक अंग देख के हम बता सकते हैं ये आदमी किस नेचर का है, किस बीमार का है, ये सबको कैसे। नाखून देख के बीमारी बता सकते, आयुष देख के बीमारी बता सकते, ईयर देख के बीमारी, इसको कहते हैं सामुद्रिक लक्षण। सामुद्रिक मीन्स पूरा शरीर का अंग है, ह्यूमन बीइंग के जो पूरा अंग है, एक ही अंग के देख के बीमारी बता सकते। तो दूसरी जो आपको जो साइनस का ये बोला गया, जो हमारा साइनस सेल्स है ये सराउंडिंग में, इसमें कफ पड़ने से मोटा हो जाता है, तो सबका फेस ऐसे नहीं। तो मोटा तो आपको समझेगा साइनस सेल में कफ भरा हुआ है, तो भर गए तो क्या करते हैं, इसको नोज को वो डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, इधर मांस बढ़ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकते हैं, सोते वक्त मुंह खोल के सो सकते हैं, सांस मुंह से ले सकते हैं, नाक से ले नहीं पाते, ये सब ये कफ का सेल बढ़ने से आ जाता है। दूसरी हमारे ये एरिया प्लस ये एरिया, ये मोटा रहेगा, थोड़ा थिक एरिया। तो हमारा खुद जो पेशेंट में क्या क्या दिक्कत आता है, कभी भी नींद ज्यादा आ जाता है, कभी सिर दर्द पार्शली सिर दर्द आ जाता है, कभी पूरा भी आ सकता है। एक बार चींटी आ गया तो कहीं देर के लिए चींटी होगा, रुकेगा नहीं, फिर मुंह खोलते हुए सोते हुए तो मुंह खोल के रह सोएगा, ये कोई डाउट ही नहीं, इस बीमारी लोग मुंह बंद नहीं कर पाते। तो वो कितने ग्रेविटी बढ़ जाएगी उस हिसाब से नाक में दिक्कत और बढ़ते जाए, कभी बढ़ते जाए। ट्रीटमेंट के रिलेशन में इसको पहले साइनस सेल्स को क्लीन करना पड़ेगा, उससे आगे जो प्रिकॉशन में इसको इस कोर्स की वजह से जो दोबारा कभी ना बनने के लिए सिर पे ऑयल लगाना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा जी। और Thank you so much, sir, for your guidance and suggestions. जी I hope people follow them and enjoy the benefits for the same. डेफिनेटली या With this, we come to the end of our session. Before closing, I would like to express my heartfelt gratitude to NSS for organizing today's event, to the management, Vice Chairman Sir, Director General Sir, Director Sir, and Head of Academics, GME Law School, and all the faculty members for your utmost support and guidance, and most importantly, to all the participants for presenting your questions and taking part in today's event with the utmost enthusiasm. Have a nice day, everyone, and stay safe. थैंक यू। Thank you, sir. That was actually, sir, one of these, was actually an eye-opening session. While you were telling, I shared this thought with the students team who are all there. And it is actually very true that the cure is within ourselves. No doubt, it's no just doubt, that no we, including me, Definitely. we've come far from this, and there's a lot to, go back to our roots and learn from them. We are the Thank you so very much, rich sir. culture there. हम किसी से लेने नहीं है, हमारे पास सब कुछ है।
Once again, our heartfelt thanks to you, sir, and to Divya for coordinating this particular session. And we definitely look forward to some more engaging sessions with you. Our program coordinator, Dr. Smita Gupta, she's not been able to join us for some reasons for today. So I convey my thanks on her behalf and from all our team and management for your time and efforts. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Bye. All the participants are requested to kindly fill the attendance form before the leaving the meeting.